بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج جو موضوع میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے قلب۔ میرے ہاتھ میں جو میری کتاب ہے قلب و آگہی، اس کو لے کر بہت سے لوگ مجھ سے یہ سوال پہلے بھی پوچھتے رہے ہیں کہ جی قلب کا تعلق آگہی سے کیسے ہو سکتا ہے، آگہی کا تعلق تو ذہن سے ہوتا ہے، اور قلب کیا ہے، کیا یہ دل ہے یا یہ سارا کیا معاملہ ہے۔ آج میں نے سوچا کہ میں تفصیل کے ساتھ آپ کو قلب کیا ہے اور میرا اس پورے لفظ کے ساتھ بچپن سے لے کر اب تک کیا تعلق رہا ہے، اور وہ تعلق کیسے ایوالو ہوا ہے، اور اب میں اس کو کیسے سمجھتا ہوں، میں اس کے بارے میں ایک پوری تفصیلی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہمیں جانا پڑے گا کچھ نسلیں پیچھے۔ 1947 میں میرے دادا اور پردادا نے ہندوستان میں مشرقی پاکستان میں ایک مشرقی پنجاب میں ایک شہر ہے موگا، یہ فیروز پور روڈ کے اوپر ہے۔ اگر لاہور سے قصور جائیں تو قصور کے بعد انڈیا میں جو پہلا شہر آتا ہے وہ موگا ہے۔ انہوں نے وہاں سے ہجرت کی۔ میرے والد اس وقت 7 سال کے تھے، میرے والد نے بھی ان کے ساتھ ہجرت کی۔ بلکہ میرے والد بتاتے ہیں کہ بڑے ہو کر جب انہوں نے چیک کیا، ایک دفعہ تفصیل سے دیکھا، تو پتہ چلا کہ 70 کلومیٹر تو میرے والد پیدل چلے تھے 7 برس کی عمر میں اس ہجرت کے لیے، کیونکہ بارڈر پہ فساد ہو رہے تھے، بارڈر کے ساتھ ساتھ چلتے رہے جہاں تک ان کو انٹر ہونے کی پاکٹ نہیں ملی۔ خیر ان لوگوں نے ہجرت کی اور 1947 میں یہ ملتان آ گئے۔ کچھ مہینے ملتان رہے اور پھر 1948 میں یہ لوگ پرماننٹلی خانے وال میں شفٹ ہو گئے۔ میرے دادا اہل حدیث تھے، میرے پردادا بھی اہل حدیث تھے، اور میرے دادا حکیم بھی تھے۔ 1948 میں انہوں نے وہاں پر آ کر حکمت کا اپنا کام شروع کر لیا۔ شروع میں کچھ عرصہ تھوڑی سی حکمت چلی، اور پھر کچھ سالوں کے بعد 1950 کے قریب جا کے سچویشن یہ بنی کہ میرے دادا کا حکمت کا جو مطلب تھا وہ بالکل بھی نہیں چلتا تھا۔ سچویشن یہاں تک ہو گئی کہ رزق کی اتنی تنگی ہونی شروع ہو گئی۔ ہجرت کر کے پہلے آئے تھے، قسم پرسی کا عالم تھا، اور اس کے اندر اگر آپ کی پریکٹس نہ چل رہی ہو تو روٹی کھانے کے لیے بھی مشکلات پیش آنے لگ گئیں، اور دادا جان ہر وقت پریشان رہتے تھے کہ میں گھر والوں کو چٹنی کے ساتھ روٹی بھی آخر کیسے کھلا سکتا ہوں۔ انہی دنوں کی بات ہے کہ میرے جو پردادا ہیں ان کو اطلاع ملی کہ موگا میں جو ایک اور مسجد تھی جس کے امام مسجد تھے، وہ بھی ہجرت کر کے ہیں، اور وہ ملتان میں ہیں۔ وہ جو امام مسجد تھے وہ کوئی صوفی تھے۔ تو بہرحال میرے پردادا کے پڑوسی تھے، اچھے روابط تھے، تو میرے پردادا ان سے ملنے کے لیے ملتان گئے۔ اب یہاں یہ مائنڈ میں آپ رکھ لیجئے کہ میرے پردادا بڑے کٹر قسم کے اہل حدیث ہیں، وہابی ہیں، اور وہ جن سے ملنے کے لیے گئے ہیں وہ صوفی مسلک کے آدمی ہیں، وہ تصوف کی دنیا کے شخص ہیں۔ خیر میرے پردادا گئے، ان سے ملے، وہ بڑی اچھی طرح ملے، بٹھایا، تعظیم کی، گفت و شنید ہوتی رہی۔ جب پردادا واپس اٹھنے لگے تو انہوں نے کہا کہ نصر اللہ صاحب، میرے پردادا کا نام نصر اللہ تھا، آ، کوئی خدمت میں آپ کے لیے کچھ کر سکوں؟ تو پردادا جان نے کہا کہ آپ بس میرے لیے دعا کر دیجیے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی جنرل سی بات ہوئی، یہ بھی بتا دیجیے کہ کیا دعا کروں۔ تو پردادا جان نے تھوڑا سا سوچا اور پھر کہا کہ میرے بیٹے کو آج کل رزق کی بہت تنگی ہوئی ہے، تو اس کے سلسلے میں دعا کر دیجیے گا۔ تو پردادا جان نے دادا جان کو بعد میں یہ بات بتائی کہ جب میں نے ان سے یہ کہا تو انہوں نے زور سے اپنا ہاتھ ماتھے پہ مارا اور کہا کہ نصر اللہ، 60 65 برس سے آپ کو جانتا ہوں، زندگی میں پہلی دفعہ کوئی چیز مانگی، پہلی دفعہ کسی چیز کے لیے دعا کا کہا، تو کس چیز کا کہا؟ بہرحال جو آپ نے کہا ہے میں دعا کر دوں گا۔ پردادا جان گھر واپس آ گئے۔ اگلے دن صبح سے معاملہ یہ ہوا کہ نیچے مطب میں ایک تانتا بن گیا ان لوگوں کا جو علاج کے لیے آ رہے تھے، اور میرے دادا کی کیفیت یہ ہو گئی کہ اگر کسی سے ریزگاری لیتے تھے اور نیچے گر جاتی تو اٹھانے کا وقت نہیں ہوتا تھا۔ اس زمانے میں 1949 1950 کے اندر صبح مطلب کی صفائی کے لیے جو آدمی جاتا تھا اس کو ریزگاری میں نیچے 10 10 12 12 روپے گرے ہوئے ملتے تھے۔ سینکڑوں روپے روزانہ کی ان کی مطلب کی روزانہ آمدنی سٹارٹ ہو گئی۔ دوسری طرف کیا ہوا کہ پردادا جان شدید اضطراب کا شکار ہو گئے۔ وہ راتوں کو سجدے میں روتے رہتے تھے، کچھ کھاتے نہیں تھے، اور ہر وقت پریشانی کے عالم میں رہتے تھے۔
कई महीने इसी तरीके से गुज़र गए। परेशानी की हालत में उनको ख़्याल आया कि ये सारा मामला उसी दिन हुआ था, जिस दिन मैं दुआ करवा के आया था। वापस मुल्तान गए, मुल्तान जाके उनसे मिले बुज़ुर्ग से, उनसे कहा कि देखें जी ये मामला ऐसे हो गया है और मेरे तो कल्ब की कैफ़ियत बदल गई है। उन्होंने कहा नसरुल्लाह मुझे तो उसी दिन एहसास हो गया था आपको मुझसे दुआ नहीं करवानी चाहिए थी। आपका अल्लाह से एक रब्त था, आपको अल्लाह से माँगना चाहिए था। बहरहाल अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो दुआ कर बैठा हूँ। अब आप जानें, आपका रब जाने। परदादा जान वापस आ गए और उसके बाद कई महीने वो इसी तरीके से सजदे में रहते थे, रोते रहते थे, रोते रहते थे, रोते रहते थे। एक दिन सुबह क्या हुआ कि परदादा जान को सबने देखा कि बहुत हशाश-बशाश है, बहुत खुश हैं और उनके पाँव ज़मीन पर नहीं टिक रहे। दादा ने पूछा कि क्या हुआ है? तो परदादा जान ने कहा कि नीचे मतब पे जाओ, तुम्हें मालूम हो जाएगा। दादा जान सारा दिन मतब पे बैठे रहे और एक भी शख्स नहीं आया। उसके बाद सिचुएशन ये हो गई कि मतब दोबारा पहले की तरह खाली हो गया, कोई शख्स नहीं आता था। लेकिन परदादा जान मुकम्मल खुश हो गए जैसे वो पहले खुश होते थे। मैं 8-9 बरस का था जब मैंने इस टॉपिक के ऊपर अपने दादा और अपने वालिद को डिस्कशन करते हुए देखा। मेरे दादा मेरे वालिद को बता रहे थे कि तुम्हें पता है तब हुआ क्या था? हुआ ये था कि दुआ करवाने के बाद उसी रात तुम्हारे दादा का मतलब मेरे परदादा का, नसरुल्लाह साहब का कल्ब जो जारी हुआ था, वो बंद हो गया और रिज़्क की बारिश हो गई थी। और उसके बाद वो महीनों रोते रहे, तो फिर ये हुआ कि रिज़्क की वो बारिश बंद हो गई, अल्लाह ताला ने दोबारा करम किया कि रिज़्क ना माँगो, रिज़्क जितना नसीब में है वो मिल जाएगा, अपने कल्ब का अल्लाह से कनेक्शन माँगो। तो फिर एक रात अल्लाह ताला ने उन्हें माफ़ कर दिया और उसके नतीजे में जो पैसा आ रहा था वो फिर बंद हो गया, लेकिन दादा जान का कल्ब फिर जारी हो गया। इसी डिस्कशन में मेरे वालिद ने फिर ज़िक्र किया कि हाँ जी, मुझे भी याद है बचपन में एक दिन मैं दादा जान के साथ सोया हुआ था। मतलब मेरे वालिद अपने दादा का ज़िक्र कर रहे थे, परदादा जान का ज़िक्र कर रहे थे कि मैं नसरुल्लाह साहब के साथ सोया हुआ था। तो रात के वक़्त मेरी आँख खुली तो मैं उनके सीने के ऊपर सर रख के लेटा हुआ था और मैं एकदम घबरा गया कि ये अल्लाहू अल्लाहू की आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। और मैं घबराया तो रोने लगा, तो उस पे मेरे परदादा की भी आँख खुल गई और उसके बाद उन्होंने मेरे वालिदा से मतलब मेरी दादी से कहा कि इसको रात को मेरे साथ मत सुलाया करो, ये डर जाता है। तो ये बचपन में कल्ब के साथ मेरा पहला तारुफ़ था कि ये कल्ब क्या होता है और ये जारी कैसे हो जाता है। उसके बाद घर में इस मौजू पे ज़िक्र होता रहा, गुफ्तगू होती रही, डिस्कशन होती रही। लेकिन थ्योरी की हद तक मैं इस चीज़ को जानता था कि कल्ब एक दिल से जुदा चीज़ है। कल्ब एक उज़्व रूहानी है जो कि उस मकाम पर जहाँ पर दिल होता है जिस्मानी तौर पर, उसी मकाम के पास पाया जाता है और ये कल्ब अल्लाह का ज़िक्र करता है। इस कल्ब के अंदर डिवाइन नॉलेज भी आ सकती है, इसी कल्ब के अंदर विज़डम होती है और इस कल्ब के अंदर आगाही पैदा हो सकती है शऊर में भी आने से पहले। उसके बाद जब मैं अपनी ज़िंदगी में एक ऐसे मोड़ से गुज़रा जहाँ पर मैंने अपनी ज़िंदगी का मकसद पा लिया। एक ज़माने में मैं बैंक में नौकरी करता था, फिर वो सूद की नौकरी मैंने छोड़ी। उसके बाद मैंने भी रिस्क के लिए बहुत धक्के खाए। फिर अल्लाह ने मेरी उँगली पकड़ ली और मुझे एक रास्ते पे ले चला। मेरी ज़िंदगी की ये कहानी काफ़ी लंबी कहानी है, ये मैं इंशाल्लाह फिर कभी सुनाऊँगा। आज उसका मौका नहीं है। लेकिन अल्लाह ने मुझे फिर ये मौका दिया कि मैं भी ये समझ सका कि हाँ, कल्ब क्या होता है और अल्लाह कल्ब मोमिन में किस तरह समा सकता है और कल्ब का अल्लाह के साथ ताल्लुक क्या होता है। यहाँ मैं एक बात वाज़िह कर दूँ कि मैं ना तो सूफ़ी हूँ, ना मैं तसव्वुफ़ के लफ्ज़ को पसंद करता हूँ। आप ऑलरेडी जानते हैं कि मेरे दादा, मेरे परदादा तो वैसे ही अहले हदीस थे, वहाबी थे। मैं अगरचे इन चीज़ों के साथ अपना कनेक्शन नहीं पाता, मैं अपने आप को ना सुन्नी कहता हूँ, ना शिया कहता हूँ, ना वहाबी कहता हूँ, ना देवबंदी कहता हूँ। मैं सिर्फ़ मुसलमान हूँ। लेकिन बहरहाल मैं तसव्वुफ़ के लफ्ज़ को पसंद नहीं करता। जिस लफ्ज़ को मैं पसंद करता हूँ, वो लफ्ज़ है एहसान। हदीस जिब्रील में जिसका ज़िक्र है। एहसान की ज़िंदगी गुज़ारना गोया अल्लाह तुम्हें देख रहा है और तुम अल्लाह को देख रहे हो। अगर ये कोशिश आप करते रहें, तो एक वक़्त आता है कि अल्लाह आपका कल्ब खोल देता है और आपके कल्ब के साथ एक नूर का रिश्ता मुतय्यन हो जाता है। नूर आपके कल्ब को हासिल होना शुरू हो जाता है। तो जो चीज़ मैं आज वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, वो ये है कि मैं दिल को
मेरी नज़्मों भी इसका ज़िक्र हो चुका है, मेरी एक नज़्म है जो मैं ऑलरेडी आपको सुना चुका हूँ, कल्ब और दिल, आप वो भी सुन सकते हैं, कि दिल कल्ब नहीं है और कल्ब दिल नहीं है। कल्ब वो चीज़ है जो अगर आप अल्लाह से कनेक्शन ना रखें तो सोया रहता है, और अगर अल्लाह से अपना कनेक्शन पैदा कर लें, तो जाग उठता है। फिर वो अल्लाह का ज़िक्र करता है, फिर वो अल्लाह का नाम लेता है, फिर वो खिलवत में और जलवत में आपका अल्लाह से कनेक्शन टूटने नहीं देता, आपको हुज़ूरी की एक कैफ़ियत में रखता है। इसका किसी किस्म का ताल्लुक नहीं है किसी ग्रोह से मंसूब होने से, इसका किसी किस्म का ताल्लुक नहीं है किसी से बैत होने से, इसका किसी भी किस्म का ताल्लुक नहीं है कहीं महफ़िलों में बैठकर अ, ज़िक्र की महफ़िलों में बैठकर अल्लाहू अल्लाहू करने से। इसका ताल्लुक है अपनी ज़ात के अंदर मुतक़िफ़ होकर अल्लाह के साथ एक कनेक्शन जोड़ने में। आप किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, आप किसी भी सोच से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर आप मुसलमान हैं, तो हर मुसलमान वली है, क्योंकि वली दोस्त को कहते हैं। हर मुसलमान किसी न किसी दर्जे में अल्लाह का दोस्त है, लेकिन कुछ लोग उस दोस्ती को निभाते नहीं हैं। अगर आप उस दोस्ती को निभाना शुरू कर दें, तो आपका कल्ब खुलता चला जाता है। थ्योरी में ग़ालिबन मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ, इसलिए कि ये थ्योरी का काम नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको बताऊँ कि कल्ब क्या होता है और आप जाकर उसको देखें। मैं सिर्फ़ ये कर सकता हूँ कि आपको अपनी नज़्मों के थ्रू, अपनी ग़ज़लों के थ्रू, अपने टॉपिक्स के थ्रू ज़ात की प्योरिटी के बारे में बताऊँ, और ये बताऊँ कि ये ज़ात की प्योरिटी एक मकसद के तहत है। जैसे आपने जानवर ज़िबह करना होता है, तो पहले छुरी तेज़ की जाती है। अगर कोई शख़्स खुद छुरी से जानवर ज़िबह करेगा, तो ये भी गलत है। लेकिन अगर कोई शख़्स सारी ज़िंदगी छुरी ही तेज़ करता रहेगा और ये भूल जाएगा कि उसने कुर्बानी करनी थी, तो ये भी गलत है। आपने तज़किया नफ्स करना है और फिर उस तज़किया नफ्स के थ्रू किसी बड़े काम के लिए, किसी बड़े मकसद के लिए अपनी ज़िंदगी को वक़्फ़ करना है। ये दोनों चीज़ें जब आप करेंगे, तो उसका हासिल ये है कि एक दिन आपको बैठे-बैठे खुद महसूस होगा कि जिस तरह आप अपना घुटना महसूस कर सकते हैं, जिस तरह आप अपनी कोहनी महसूस कर सकते हैं, जिस तरह आप अपना चेहरा महसूस करते हैं, उसी तरीके से आप एकदम अपने कल्ब को महसूस करेंगे। जिस्म के अंदर एक जीती जागती हकीकत के तौर पर। उसका सिर्फ एक रास्ता है, सफाई इख्तियार कीजिए, सोच की, ज़हन की, जज्बों की, जिस्म की, खुर्द-ओ-नोश की, और उस सफाई के साथ कोई बड़ा मकसद इख्तियार कीजिए कि ये सफाई सिर्फ सफाई के लिए नहीं, बल्कि किसी बड़े मकसद के लिए है। अगर आप ऐसा करेंगे, तो आप कल्ब को महसूस कर सकेंगे, और जब आप उसको महसूस कर लेंगे, तो आप पर खुद ये राज़ खुल जाएगा कि वो जारी कैसे होता है। मेरे थोड़े कहे को ज़्यादा जानिएगा, मुश्किल हो जाता है कि इससे आगे इन मौज़ूआत पर बात की जाए। आप लोग गौर करेंगे तो यकीनन राह पा लेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।